Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to our esteemed participants for today's webinar on SME IPO, Unlocking Growth to Capital Markets. It is my privilege today to have CA Dr. Raj Chawla sir as our organizer, whose extensive experience and guidance have helped us, numerous businesses, navigate the journey towards successful SME IPOs. And I now request CA Dolly Deep Pandya ma'am to deliver the welcome address and officially commence today's session. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. A very good evening to all of you. आज का सेशन हमारे चंदन पावा सर ले रहे हैं. So I'm going to give a short brief introduction about him. Chandan Pahwa sir is a seasoned finance professional over 24 years of experience in IPOs, fundraising, finance and compliance. He specializes in delivering strategic financial solutions for startups, SME and growing enterprises. As an IPO advisor, he provides end-to-end guidance for SME IPO readiness for regulatory preparation to successful listing. He has successfully supported more than 10 plus SMEs in launching their SME IPOs. He worked closely with SME owners and startup founders to strengthen their financial foundation and build strategic clarity for long-term growth. As a virtual CFO and growth advisor, he supports mid-stage and funded startups in scaling responsibly while improving operational and financial efficiency. He also advises startup founders on growth strategy and fund readiness, helping them prepare for sustainable expansion and investors' confidence. Sir, आज का सेशन मेरे लिए बहुत न्यू है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम गुड इंसाइट्स फ्रॉम दिस वेबिनार. एंड ओवर टू यू एंड वेलकम सर, एंड प्लीज स्टार्ट योर डेलिब्रेशन. Thank you so much. Thank you, Dolly ma'am, for the warm introduction. सर की फोटो भी मैम शेयर करवा दो, क्योंकि डिस्प्ले में सर की उसके साथ दिख नहीं रही है. Can we start? बस सर आपकी एक बार स्क्रीन आ रही है सर, स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिख रही है सर. आप भी दिख जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा. सर एक बार दोबारा से अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो शायद से आप आ जाएंगे. मैम आ रहे हैं ना अभी. मैं स्टॉप शेयर करता हूँ. Yes. So am I visible? Okay now? But the screen is not sharing right now. I can see myself on the screen. सर आपकी प्रेजेंटेशन भी नहीं आ रही अभी. प्रेजेंटेशन तो मैंने हाइड कर दी है. So is it okay? I can start that. स्टार्ट करते हैं सर स्क्रीन शेयर करने के बाद. Yes, I can share the screen. Is it okay now? Yes, sir. So, hello friends, welcome all of you. And first of all, would like to say thank you, Mr. Raj Chawla, for giving me the opportunity to present this session. So today is a very good opportunity or good session we are going to have in upcoming 1.5 hours, that about the SME IPO. So we'll understand that what is the SME IPO, why it is launched, what was the need that, and what are the eligibility criteria, what is the benefit for that, some key challenges faced by the SMEs,
and what are the major opportunities for the CAs. So the agenda is that the opportunities CA can grab in this SME IPO world. Nowadays, so many IPOs are coming in a year, more than 250. So there is a good opportunity for the CAs. We'll understand in this session. So let's start this session with a good, positive mindset, and hope people will enjoy the session. So the agenda is that how to help, being a chartered accountant, how to help your clients to become a unicorn company, because now the SMEs are facing so many challenges. So what is the problem statement? Problem statement is फंडिंग, पैसा सबको चाहिए, बट थोड़ा challenges है. बिजनेसमैन कहता है कि पैसा आए तो हम कुछ करके दिखाएं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करो तो हम आए. So that kind of chicken and egg situation every MSME face. उनको लगता है कि पैसे मिलेंगे तो हम ग्रो करेंगे, और पैसा कहता है कि तुम ग्रो करो तभी हम आएंगे. तो सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम इज फंडिंग. सोल्यूशन, आज की डेट में मेजर 3 सोल्यूशन है जहाँ से आपको फंड्स मिल सकते हैं. जैसे पहला, बैंक लोन बहुत इजी है, इंटरेस्ट एंड कोलेटरल पे जाता है और सिक्योरिटीज भी जाती हैं, बट आपको वो रिटर्न भी करना पड़ता है. बैंक लोन बहुत इजी मोड है. एवरीबडी नोज कि बैंक लोन कैसे मिलता है, कैसे उसको अवेल करते हैं, कैसे उसका रिपेमेंट शेड्यूल, इंटरेस्ट और उसका रिपेमेंट होता है. नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट इक्विटी. आज की डेट में फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बहुत सारा, जब से स्टार्टअप इंडिया मोदी जी ने स्टार्ट किया है तो फंडिंग के ऑप्शंस बढ़ भी गए हैं ऑल्सो बहुत, बट देयर आर सम चैलेंजेस. We have seen in our experience that only 3 to 5% startup got the funding. तो बहुत नैरो सक्सेस रेट है उसका. तो दैट इज वाई, और बिकॉज एमएसएमई एमएसएमई फेस करता है बहुत सारे चैलेंजेस. उनको फंडिंग चाहिए बट मिलेगी कैसे? बैंक लोन मिलती है, प्राइवेट इक्विटी, बहुत सारे एमएसएमई जो ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस में प्राइवेट इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होते. और गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट फील्स दैट कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स अराउंड 30 to 40% ऑफ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया, बट उनके पास फंडिंग फैसिलिटी नहीं है, केवल बैंक लोन ही करता है. तो दे शुड गेट फंडिंग फैसिलिटी और उनको भी ग्रो करने का हक है. तो बिफोर 2012 केवल बड़ी कंपनी भी आईपीओ लॉन्च कर सकती थी. आप कह सकते हो 1000 करोड़ की टर्नओवर, 2000 करोड़ टर्नओवर. लाइक एक टाइम में रिलायंस ने सबसे पहला आईपीओ अराउंड 40-50 ईयर्स बैक लॉन्च किया था. तो बड़ी कंपनी ही आईपीओ लॉन्च कर सकती थी, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एमएसएमई को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए बैंक लोन के अलावा, बिकॉज वेन एवर द एमएसएमई ग्रोस अराउंड 40 to 50 CR टर्नओवर, बैंक की भी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं. दे नीड अराउंड 30 to 40 CR, 50 CR ग्रोथ कैपिटल. सपोज उनको एक नई फैक्ट्री लगानी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो बट दे आर मिसिंग दैट फैसिलिटीज. So that is why SEBI and government has launched a small or a sub version of stock exchange which called NSE Emerge and BSE SME, which is the sub part of main NSE और BSE board, जिस पे हमारे मेन बोर्ड के IPO लॉन्च होते हैं. तो 2012 में NSE Emerge and BSE SME लॉन्च हुआ. उसके बाद SME IPO इनिशियल स्टेज पे तो काफी कम आईपीओ आए, बट लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ कि वी कैन ऑल्सो रेज द फंड्स फ्रॉम एनएससी इमर्ज और बीएससी एसएमई. So today's session is that to aware, to spread the knowledge and awareness about the SMEs, so that you all the chartered accountants can help your client to become a unicorn company. आप एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं because of NSE merge, BSE SME and SME IQ platform. So we'll understand in the whole session today कि कैसे एनएससी और एनएससी मर्ज और बीएससी एसएमई में स्टॉक एक्सचेंज अपनी कंपनीज अपनी स्टॉक लिस्ट करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, और कैसे कैसे हम उनके साथ ये काम कर सकते हैं. So that's the agenda. We can start with. There was a one good, you can say that a proud moment for India. In 2024, we have launched 327 IPOs. We were ahead, far ahead from USA, Europe, and China.
We were just around double from the USA. So we have launched around 240 SME IPO in 2024 and 67 was main board IPO. So we were the top in the IPO volume whole globally. So ये एक बहुत I can say that this is the main crux if you want to guide your client कि कैसे आप SME IPO के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं या some challenges they are facing. So that we must understand कि क्या eligibility criteria है because everybody will ask client आपसे पूछेंगे कि sir let me know the criteria, how can I apply for the SME IPO, are we eligible or not. So this is the basic criteria we have seen, you can see on the screen. First is minimum 3 year track record. So आपकी कंपनी 3 year old होनी चाहिए minimum, so you can go for the IPO. आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो आप आईपीओ नहीं लॉन्च कर सकते हैं. अगर आप प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप हैं, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या आपकी ओपीसी कंपनी है, तो वी हैव टू बी कन्वर्ट इनटू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके बाद आप एसएमई आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं. और उसमें जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का वो भी काउंट होता है. मतलब मींस इफ यू आर 2 year पार्टनरशिप फर्म और 1 year प्राइवेट लिमिटेड, तो 2 year पार्टनरशिप का डेटा भी और वॉल्यूम और जो टर्नओवर आपने बिजनेस किया है वो भी काउंट होता है. सो 3 year ट्रैक रिकॉर्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नेटवर्क कितनी होनी चाहिए. सो एज पर द स्टॉक एक्सचेंज जो आपका एलओडीआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एज पर दैट एटलीस्ट 1 CR का इबिटा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 CR इबिटा फॉर लास्ट 2 year, any 2 year from out of 3 years. 2 year must be positive EBITDA should be there. So this is a very मिनिमम क्राइटेरिया. तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर 1 करोड़ का इबिटा है तो आईपीओ आ सकता है. प्रैक्टिकली जब हम वैल्यूएशन, देयर आर सम स्लाइड्स वी कैन डू द वैल्यूएशन ऑफ द योर एसएमई आईपीओ क्लाइंट कि आईपीओ की वैल्यूएशन, एसएमई आईपीओ वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हायर होगा उतनी वैल्यूएशन ज्यादा होगी. तो ये अल्टीमेटली मीट होता ही है. इफ वी सेलेक्ट द कंपनी, उनका इबिटा 1 करोड़ से ऊपर होगा, अप्रोक्सीमेटली आप यू कैन से दैट अराउंड 6 to 7 CR और पैट मस्ट बी अराउंड 3 to 4 CR सो दैट एक अच्छी वैल्यूएशन मिले. तो प्रैक्टिकली ये हमेशा मीट करता है क्राइटेरिया. अदर पॉइंट्स आर नेट टेंजिबल एसेट्स, दैट मिनिमम 1 CR 3 CR होता है तो बेटर है. जितना नेट टेंजिबल एसेट और नेट वर्थ हो उतना ही आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, उतने ही फंड्स आपको ज्यादा मिलते हैं एसएमई आईपीओ के थ्रू. तो मिनिमम टेंजिबल एसेट्स आपकी 1 CR, मिनिमम नेटवर्थ मिनिमम 1 CR होनी चाहिए. इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं बिकॉज यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट फॉर द ऑडिट टास्क, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, आईटीआर फाइलिंग, सम अदर टास्क यू आर डूइंग विद दैट. सो यू मस्ट नो कि एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कि एक वन पॉइंट जिससे मैं अपने क्लाइंट को बोलूं कि यू आर एलिजिबल फॉर द आईपीओ, यू कैन चेक द एलिजिबिलिटी, एटलीस्ट go ahead to check the eligibility for the IPO. So that is the thing, that if your client is having turnover of around 40 CR, 30 to 40 CR plus, then you can check the eligibility. More or less आपके ये सारे criteria fulfill हो सकते हैं. So generally, if I say to my client, at least I check the turnover. अगर उनकी turnover 40 to 50 CR है, then I take the engagement and ask them to build a eligibility, to check the eligibility criteria. So this is the major and one point eligibility criteria. If the client has a 40 to 50 CR turnover, that would be most probably 80% 90% chance है उनकी eligibility criteria meet करने की. Can we move ahead next slide or any questions from this slide? Should we move? So last I said कि proprietorship or LLP partnership that can also be go for the SME IPO. There must be a private limited company, that is the final, because they have to be convert their company into private limited company. When we go for the IPO, we convert into the public limited company because IPO में जाने के लिए public limited company ही must है.
Promoter stability. So promoter should not change in the last 1 year. That is the must criteria. Their shareholding should not be changed. Other things we can see that there is a consistent profitability at least 2 year out of 3 years. Cash flow feasibility. This is criteria imposed by the NSC merge only. BSC में criteria नहीं है. Positive free cash flow out of 2 year, any 2 year out of 3 years. तो पॉजिटिव कैश फ्लो भी होना जरूरी है एनएससी इमर्ज में जाने के लिए. इफ यू आर गोइंग फॉर द बीएससी दिस क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड. So this was the eligibility criteria. But अब क्वेश्चन आता है कि why we should go for the SME IPO. तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन का आंसर हमेशा यही रहता है कि जनरली जैसे क्रिकेट में जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो. क्रिकेट में जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो. और आईपीओ करने का मजा तभी आता है जब आपको अपनी कामयाबी से इश्क हो. अगर कामयाबी से इश्क है तो एसएमई आईपीओ इज अ गुड ऑप्शन. यू शुड ऑलवेज ट्राई. सो फर्दर वी कैन डिस्कस क्या क्या बेनिफिट्स हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसएमई आईपीओ. सबसे पहला बेनिफिट है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई कोलेटरल नहीं देना. दिस इज द इंटरेस्ट फ्री एंड कोलेटरल फ्री फंडिंग. और दिस फंडिंग इज नॉन रिटर्नेबल. दिस इज फ्यूचरली योर्स. आप उसको यूज कैसे करते हैं, कैसे अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं उस फंड को यूज करके, दैट इज अप टू यू. जितनी आप अच्छा ग्रो करेंगे उस फंड से उतनी कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होगी आफ्टर द लिस्टिंग. So this is the major benefit. You can get interest free and collateral free funding and which is non returnable. Out of the funds you can also pay off your debt. Suppose I can say that you have seen so many big finance costs in the profit loss statement of your client. If you are paying the loan and that interest will be reduced and your profitability will increase post IPO. और उसका इम्पैक्ट सीधा वैल्यूएशन पे इंक्रीज होता है. whenever your profit will increase your share price will increase into the stock exchange. और आपकी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. और और कई जब भी आप शेयर की बात करते हैं कि दिस आईपीओ वी आर द क्लाइंट, दिस कंपनी इज आवर क्लाइंट, तो उनका शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यू विल ऑल्सो गेट क्रेडिबिलिटी. आपको भी अच्छा लगता है कि मेरी कंपनी का शेयर प्राइस, मेरे क्लाइंट की कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है. तो दैट इज द मेजर पार्ट कि आप बर्डन अपना जो लोन है वो भी पे कर सकते हैं उस फंड से और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली. अगर आईपीओ आ गया तो क्या पिक्चर खत्म? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है. उसके बाद भी आपको फंडिंग मिलती है. आप फॉलो अप आईपीओ कर सकते हैं. आपके पास डेट के ऑप्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं. सो मेनी ऑप्शन यू कैन अनलॉक आफ्टर द आईपीओ बिकॉज यू आर नाउ क्रेडिबल कंपनी, यू आर ट्रस्टेबल कंपनी. आपने आईपीओ का प्रोसेस थ्रू किया है, बहुत सारे ऑडिट से आपकी कंपनी थ्रू हुई है, सेबी की अप्रूवल है, स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल है, पब्लिक अप्रूवल है, इन्वेस्टर आपके साथ हैं. So after that IPO, so many funding options you can unlock. So many funding option is available for you. These are the benefits we are discussing now. Business expansion. आप एक आईपीओ कंपनी, एक कंपनी आपकी लिस्ट हो चुकी है. that so many customers, so many suppliers will work according to your terms and condition. Because before the IPO, MSME has faced so many challenges. आपकी क्रेडिटर की पेमेंट पहले है, डेटर की कलेक्शन बाद में हो रही है, आपका कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है, आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहे हैं. So that is the so many challenges: manpower, customer, marketing, credibility. तो आफ्टर द आईपीओ यू विल बी ए ट्रस्टेड कंपनी, यू विल बी ए क्रेडिबल कंपनी. उसके बाद आपका प्रॉफिट जो इंक्रीज होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपने फाइनेंशियल पब्लिश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आता है. तो मार्केट का नजरिया आपके क्लाइंट्स के लिए, आपकी कंपनीज के लिए टोटली चेंज होता है. यू विल फील एज अ सेलिब्रिटी वेर एवर यू गो. यू से दैट दिस कंपनी इज लिस्टेड कंपनी. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नो दैट कि एक लिस्टेड क्लाइंट होना और एक अनलिस्टेड क्लाइंट में कितना फर्क है, दोनों की क्रेडिबिलिटी में कितना फर्क है, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन में कितना फर्क है, दोनों के नाम में कितना फर्क है. आप भी कई बार कहते हैं कि दिस इज अ लिस्टेड क्लाइंट एंड दिस इज माय लिस्टेड क्लाइंट. तो आपको भी थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि ये मेरा लिस्टेड क्लाइंट है. तो उस क्लाइंट को कितना अच्छा फील होता होगा ये सोचो कि आफ्टर द लिस्टिंग पीपल एनकरेज हिम, पीपल सेलिब्रेट देयर विक्ट्री कि आप आईपीओ पे लिस्ट कंपनी हो चुके हैं और एक क्रेडिबल कंपनी है मार्केट में.
So that is a good benefit as a credible. Like you are doing, you are become a celebrity. You become an industry leaders because nowadays so many industries are going on the IPO. Suppose एक industry है जिसमें IPO बहुत कम आए हैं, तो उस कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो देखा देखी उसकी साथ की जो उसकी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं वो भी फॉलो करते हैं, और उस इंडस्ट्री के लिए यू विल बिकम ए सेलिब्रिटी, यू बिकम ए इंडस्ट्री लीडर फॉर दैम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट ये मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी। बिकॉज अभी आप एमएसएमई चैलेंज फेस करता है कि उनकी ना कोई ब्रांडिंग है ना मार्केटिंग है, पीपल डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, पीपल डोंट नो अबाउट देयर ब्रांड, अबाउट द नेम। बट जब आईपीओ का प्रोसेस होता है देन देयर सो मेनी मार्केटिंग थ्रू न्यूज मीडिया, न्यूज़पेपर, you see that so many ads are coming for the IPO coming, list price on this, the share is listing on that day, so you will be, you know that company, so so many marketing branding आईपीओ के प्रोसेस में इतनी हो जाती है कि एवरीबडी नोज अबाउट यू कि ये कंपनी की नया ब्रांड आया है, तो इजीली सपोज आप टीवी में ऐड देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये है आप परचेज करो, लाइक दिस आईपीओ में भी आपका नाम होता है, आपका प्रोडक्ट का क्रेडिबिलिटी जाती है, प्रोडक्ट का नाम जाता है, कंपनी का नाम जाता है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू गो, और आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है आईपीओ प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सी दैट आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, लिक्विडिटी आपको मिलती है, आपका कैश फ्लो अच्छा होता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू, आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर्स आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हैं। एक सबसे अच्छा पॉइंट है विच आई फील पर्सनली, बिकॉज वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आवर क्लाइंट्स आर एट लीस्ट मिड एज अराउंड 40 to 50, सो दे थिंक कि अभी अभी तक हमने अराउंड 30 to 40 ईयर में इतनी मेहनत करी है, अराउंड 50 CR टर्नओवर, 100 CR टर्नओवर की है, तो ऐसी जितना स्ट्रगल हमने किया है क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उतना स्ट्रगल करे? सबका आंसर होगा नो। सो आईपीओ इज द थिंग विच गिव यू द सक्सेशन प्लान। आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के लिए एक बहुत वैल्यूएबल कंपनी देती है। सपोज आपका आईपीओ आया 100 CR की वैल्यूशन पे या 200 CR की वैल्यूशन पे, तो अराउंड आफ्टर 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर वो वैल्यूशन होती है अराउंड 1000 CR, और आपके पास अगर 75% भी शेयर बचे हैं इसमें, अराउंड मैं कहता हूँ तो 750 CR की वैल्यूशन के शेयर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करके देते हैं। अगर आप आईपीओ नहीं करेंगे तो शायद वो 10, 20, 50 करोड़ के भी हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आईपीओ इज द वे दैट यू कैन प्लान योर सक्सेशन प्लान, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छा गिफ्ट देकर जाते हैं। अगर वो, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी केसेस कि कंपनीज एट द एज ऑफ अराउंड 50, 60 द पीपल आर गोइंग टू सेल देयर कंपनी, कि हम अपनी कंपनी नहीं चला सकते, आप सेल कर दो। तो वी प्लान कि आप आईपीओ करो, और आफ्टर 10 ईयर योर कंपनी विल बी ट्रांसफर टू, योर शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। नथिंग लाइक दैट। अगर 1000 करोड़ की वैल्यूशन हो गई, आपके शेयर 750 करोड़ के हो गए हैं, नथिंग लाइक दैट। तो दिस इज अ गुड वे ऑफ ए सक्सेशन प्लान। ये बेनिफिट मेरी तरफ से पर्सनल थॉट है, नेवर रिटर्न समवेयर। सो मुझको, बिकॉज वी आर सम इक्वलेंट एज, तो हमें भी अपना कुछ सक्सेशन प्लान करना होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड गिफ्ट थ्रू द आईपीओ। और एक स्मॉल कंपनी, 40-50 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी अगर 1000 करोड़ की वैल्यूशन पे जा रही है, और उसका बेनिफिट आगे भी कुछ होगा, तो आईपीओ इज द थिंग विच यू हैव नॉट डन, पिछली किसी जनरेशन ने नहीं किया, और ये एक ऐसी चीज है जो अगली कुछ जनरेशन को कुछ करने की जरूरत भी नहीं देती। तो दैट इज द गुड वैल्यूशन यू कैन गेट फ्रॉम द एसएमई आईपीओ। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स, वी कैन ग्रैब इट, और आप अपने क्लाइंट को गाइड कीजिए कि यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एसएमई आईपीओ और मेक ए यूनिकॉर्न कंपनी जो अपकमिंग। और एक आईपीओ का फायदा बहुत बहुत लोगों को होता है। इफ आई से दैट एक कंपनी अगर बड़ी होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, फोन अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, आपके हमारे जैसे जो कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए बहुत बिजनेस बनता है। सो एक आईपीओ से काफी सारे लोगों को फायदा होता है, लेबर क्लास के लिए बहुत फायदा है। एक फैक्ट्री, अगर उन्होंने एक फैक्ट्री नई स्टार्ट की है तो सो मेनी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट्री। So that kind of benefits we can get it from the SME IPO. Any question from this? Should I move that?
कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे लगता है, कुछ एनर्जी डाउन है. अच्छा, नहीं सर, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम द यस ऑडियंस? सर, आप सर पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो इसको समझ ही रहे हैं, विजुलाइज करें साथ साथ बड़े बड़े। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. अच्छा, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? कैन आई गेट द आंसर ऑन द चैट बॉक्स? ओके सर। कि हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड इन एसएमई आईपीओ एज ऑफ नाउ? एक गैस, कुछ भी. जो सही आंसर करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है. यू कैन कम टू माय ऑफिस एंड टेक द गिफ्ट. जस्ट आंसर एनीथिंग. यस, गुड. 70. अभी नेक्स्ट स्लाइड उसी की है, उसी के स्टैट्स में आपको बताऊंगा कि एसएमई आईपीओ में आज तक कितनी लिस्टेड कंपनीज हैं, और उसके स्टैट्स आपको देख के मजा आएगा. योर माइंड विल बी ब्लोन. और आपको पता लगेगा कि मार्केट में एसएमई आईपीओ में क्या क्या धूम धड़ाके हो रहे हैं. दिवाली बन रही है. 600, 700. यस मिस्टर विशाल, वेरी गुड. थोड़े मोर मोर क्लोजर, थोड़ा सा और. नीड मोर आंसर्स. थोड़ा नंबर बढ़ाओ. यस कमलजीत जी, 1200. यस, बिट मोर. वन वन गिफ्ट फ्रॉम माय साइड. थोड़ा एनर्जी लेके आओ सेशन में, कुछ एनर्जी नहीं आ रही है. मोर आंसर्स, मोर आंसर्स, मोर पार्टिसिपेशन. यस, यस. गूगल देख रहे हो आप? चलो, गूगल का आंसर भी गलत है, मैं आपको ये बताऊं. गूगल इज showing wrong answer. This is incorrect. So more participation. एटलीस्ट जितने पार्टिसिपेंट है, एक एक आंसर तो आना चाहिए. 15 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो एटलीस्ट 15 आंसर आई नीड. और जिनके आंसर सही होंगे, अगर वो चार भी हैं तो चारों को गिफ्ट मिलेगा. दैट इज फ्रॉम माय साइड. एटलीस्ट 15 आंसर्स. कहते हैं ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. कर दिखाओ कुछ ऐसा जो किसी ने किया ना हो जैसा. कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे मिले आपको तरक्की और पैसा. कर दिखाओ कुछ ऐसा वैसा आईपीओ जैसा जिससे आपको मिले तरक्की और पैसा. तो ये सब आपके लिए है. अपने क्लाइंट को बताइए कि कुछ ऐसा करो कि जिससे आपकी भी तरक्की हो, क्लाइंट की भी तरक्की हो, सभी को बिजनेस मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और पैसे का मूवमेंट भी यूनिफॉर्मली रहे. सम मोर आंसर्स. अभी मैंने एक आपको बताया था ना कि बिजनेसमैन कहता है कि पैसा आए तो हम कुछ करके दिखाएं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करो तो हम आए. और एसएमई आईपीओ कहता है कि मैं पैसा और तरक्की दोनों साथ लेके आए. तो एसएमई आईपीओ में फंडिंग और ग्रोथ दोनों साथ में आती है. इस बात की गारंटी है. आपने देखे ही होंगे कि आफ्टर द लिस्टिंग कंपनी का माइंडसेट क्या होता है. वो हम तो फेस करते हैं क्लाइंट के साथ. उसका माइंडसेट चेंज होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका उसके क्लाइंट्स का माइंडसेट चेंज हो जाता है, उसके उसको और ऑर्डर्स मिलते हैं. कंपनी ऐसी ग्रो होती है. आईपीओ के बाद सो मेनी ऑर्डर्स दे गेट. एम्प्लॉइज काफी हैप्पी रहते हैं कि यार कंपनी स्टेबल ना हो. उससे पहले सपोज आपने देखा ही होगा कि काफी लेऑफ्स आजकल होते हैं स्टार्टअप्स में, एमएसएमईज में. तो ये उन्हीं की स्टेबिलिटी के लिए है. चलो, गुड. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर देता हूँ, कितने आंसर्स हैं. और फिर मोर 1500. मिस्टर शशिधर राजू, आंसर इज ऑलमोस्ट करेक्ट. गूगल वाला आंसर गलत था, बट गूगल से बोलना है एक सही आंसर करे, शो करे. तो स्लाइड्स, आर यू एबल टू सी माय स्लाइड्स ना? यस सर।
So next slide is about the SME IPO stats. क्या अब तक हुआ है 2012 से 1500 आईपीओ आज की डेट तक हैं। अभी आप देखेंगे तो दो चार और बढ़ गए होंगे, शायद ये कल तक का डेटा है। और सबसे ज्यादा आईपीओ आया है 2024 में 267, 25 में 240, सॉरी 2024 में 250 और 2025 में 267 और 2026 में अराउंड 94 आईपीओ हैज बीन लॉन्च। और आप देखिए फंड्स कितने रेंज हुए हैं आज की डेट में टिल डेट, और अराउंड 38,000 करोड़ रुपीस और एवरेज अराउंड 25 सीआर। किसी का 100 करोड़ का आईपीओ भी होता है, किसी का 20 का भी होता है, किसी का 70 80, तो अकॉर्डिंग टू दैट 11,500 अप्रोक्सीमेटली 11,500 करोड़ हैज बीन रेज्ड इन 2025। और अभी तक 94 आईपीओ में अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस हैज बीन रेज्ड। और आपको बताऊं, ये देखो थोड़ा सा डेटा 2012 से एनालाइज कीजिए कि जब आईपीओ स्टार्ट हुआ था 2012 में एसएमई आईपीओ, देन अराउंड 14 आईपीओ 35 40, देन इंक्रीज हुए, फिर बीच में डिप आया बिकॉज ये कोविड पीरियड था अराउंड 19 20 21, देन स्पीड आई है 2020 से अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस, 8,000 करोड़, देन 11,000 करोड़। एक बार देखिए कितना जाता है, मार्केट थोड़ा सा खराब है, यू एवरीबॉडी नोज दैट। बट यू नो कि अगर साल में अगर 10,000 11,000 करोड़ अगर मार्केट में स्प्रेड हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट? बिकॉज यू आर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एवरीबॉडी इज दैट। तो आपको क्राइटेरिया बेनिफिट तो ये सब कुछ आपको आइडिया है, यू नो कैसे कैसे फाइनेंशियल बनते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए। आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हम सीएस के लिए है। सो मेनी एरिया, अगर आप एक एरिया भी pick कर लेते हैं ना, और आपकी फीस भी बहुत होती है। अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं तो डबल फीस मान लीजिए, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम यू कैन इंक्रीज योर फीस डबल। तो अभी अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करता हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट, थोड़ी एक दो स्लाइड बीच में है। और एक स्टेट्स वाइज हम आईपीओ एनालाइज करते हैं। टॉप 10 स्टेट्स ये हैं। 428 सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, यू नो दैट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, 428 आईपीओ हैज बीन देयर। गुजरात जो बिजनेस कैपिटल है ऑलमोस्ट, सबसे ज्यादा बिजनेस गुजरात में ही होते हैं बिकॉज गुजराती पीपल आर वेरी लाइक माइंडेड पीपल, ट्रू बिजनेसमैन दे आर। तो अप्रोक्सीमेटली 400 397 आईपीओ आर देयर। दिल्ली कहीं पीछे रहने वाला तो है नहीं, बिकॉज आई नो वी आर ऑन टेरिटरीज, तो दिल्ली से भी 209 आईपीओ आए हैं। बट जो अदर स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल पीपी 93 है, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बट कुछ स्टेट्स हैं जो यहाँ नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं आईपीओ नहीं है, कम है, 2 4 5 10 बिलो 30 है। लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट्स ऐसे हैं यहाँ पे कम आईपीओ है लेकिन इंडस्ट्रीज बहुत है। तो आइडिया जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ के हैं, तो यू कैन गेट द आइडिया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है जिस स्टेट में आईपीओ कम है। आप 3 स्टेट के अलावा यहाँ तो हमेशा आएंगे आएंगे, महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली तो एवरी टाइम विल बी हाईएस्ट। बट जो अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने क्लाइंट्स को गाइड कीजिए और आईपीओ उनको लॉन्च कीजिए और अपनी फीस भी इंक्रीज कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो टोटल अगर टॉप टेन स्टेट्स की बात करें तो अराउंड 1389 आईपीओ आउट ऑफ 1500 केवल टॉप 10 स्टेट्स से हैं। जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्प्रेड द अवेयरनेस, स्प्रेड द नॉलेज और द एसएमई आईपीओ, और आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं कि वैल्यूएशन कैसे होती है आईपीओ की। सो इन एसएमई आईपीओ, ये जो आप स्टेट बता रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के पर्सपेक्टिव से बता रहे होंगे ना, आईसी के Yes, हरियाणा yes. में। हाँ, मतलब जो जिस कंपनी सपोज रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आईपीओ उस रजिस्टर्ड ऑफिस से ही फाइल होता है। ओ, ठीक। तो अगर ये उनकी हरियाणा वाले दिल्ली से फैक्ट्री कहीं और है, हाँ यस, रजिस्टर्ड ऑफिस से ही होता है। उनकी फैक्ट्री सपोज किसी और स्टेट में भी है तो काउंट वो वहीं से होता है जहां से एप्लीकेशन फाइल होती है। तो जनरली फैक्ट्रीज तो बहुत है, जैसे भिवाड़ी है, आपकी उत्तराखंड में काफी है, देहरादून, हरिद्वार, हिमाचल में बद्दी है। तो सो मेनी स्टेट्स हैव द गुड इंडस्ट्रियल एरियाज बट अवेयरनेस इज मिसिंग। तो वो
माय एजेंडा इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस, स्प्रेड द नॉलेज कि आईपीओ में कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फंड्स स्प्रेड हो रहे, कितने फंडिंग हो रही है एक्चुअल में, तो उसका फायदा हमें उठाना है। बिकॉज वी ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी नो किस चीज को हमने कैसे मार्केट करना है। तो क्लाइंट के लिए भी क्रेडिबिलिटी है कि हमने उनका आईपीओ लॉन्च किया, उनको 20-25 करोड़ दिए, तो जिंदगी में कभी आपको नहीं भूलता। उन्हें पता है ही इज द पर्सन हु हेल्प मी। बिकॉज जब वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात ही आती है कि मेरा ऑडिट कर दो, मेरी अकाउंटिंग कर दो। तो जब वो ग्रो करते हैं, आप उनको हेल्प करते हो ग्रो करने में, तो इट इज ए नथिंग लाइक दैट, आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड यू मे आस्क? सर एक यस। बार बताइए कि एक तो आपने टर्नओवर का बेसिस बताया था आईपीओ लॉन्च करने के लिए, और किस बेसिस पे, मतलब किस क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कैसे होते हैं इसके? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर उसके 40 से या 50 से टर्नओवर है, दीज आर टू क्राइटेरिया यू कैन चेक इट। उसके बेसिस पे हम उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, मोर और लेस इंक्रीज होती है, मोर और लेस उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। थोड़ी बहुत जो रहती है तो फिर थोड़ा उसको क्या होता है कि 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग जाता है, उनको पता लग जाता है कि ये स्टेप्स करने हैं। तो विद इन इसमें आईपीओ में अराउंड मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ लगता है, मैक्सिमम 1 ईयर भी 2 ईयर भी, बिकॉज द टाइम यू स्पेंड इन द रेडीनेस, वो टाइम सबसे ज्यादा जाता है। आपकी अप्रूवल्स इन सब चीज में अराउंड 3 to 4 मंथ तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल लेता है, 2 बार अप्रूवल होती है। आई टेल यू द नेक्स्ट स्लाइड, जब आईपीओ का एप्लीकेशन वाली स्लाइड आएगी आई विल गाइड यू। तो 4 to 6 4 मंथ तो अप्रूवल्स में जाता है, बाकी प्रिपरेशन है। आई गाइड यू कैसी क्या क्या प्रिपरेशन इसमें, एज ए सीए यू कैन डू दैट। उस पीयर रिव्यू ऑडिटर के लिए बैलेंस शीट बनती है, रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स, अराउंड 30 to 40 सर्टिफिकेट्स बनते हैं, विच इज 2 टाइम, एक डीआरएसपी के टाइम, एक आरएसपी के टाइम। तो ये सब चीजों में टाइम जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो चैलेंजेस हैं, मैं एक बार चैलेंजेस की भी डिस्कस करूंगा, उन सर चैलेंजेस कंपनी को। कितनी भी पुरानी हो, कंपनी की मिनिमम लाइफ। 3 ईयर, हाँ मिनिमम 3 ईयर है। 20 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, दैट्स अ वेरी गुड क्रेडिबिलिटी। और मिस्टर शशिधर राजू, यू कैन पिक द गिफ्ट फ्रॉम माई ऑफिस, और राज चावला जी के ऑफिस से आई डिलीवर देयर, और मेरे से फोन करके आप कर पूछ सकते हैं। तो Sure. 1500 इज द राइट आंसर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। तो या सर सबसे मिनिमम बोली मैंने लगाई थी। 70 तो आप देखिए ना, 3-4 ईयर में ही हो गए थे। तो 250 पर ईयर आईपीओ आर लॉन्चिंग, मोर देन 250। तो थोड़ा सा एक चीज और बताइए, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स, कि किस लोकेशन से यू हैव जॉइंड, सो व्हाट आर द पार्टिसिपेंट ऑन विच लोकेशन, यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर इन हरियाणा, राजस्थान, गुड़गांव, वेरी गुड। विशाल जी इन गुड़गांव, हैदराबाद, ग्रेट। हैदराबाद में आईटी कंपनी बहुत है, फरीदाबाद में भी काफी अच्छी इंडस्ट्री है, ग्रेट गुड। फरीदाबाद, दिल्ली, दिल्ली तो ऑलवेज वी आर फ्रॉम दिल्ली, great, great. Any other city or any other state people have joined today? Okay, 3-4 states से ही हैं. That's good. Good. So the agenda was to ask this question कि आप किस स्टेट से हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जिस स्टेट में आईपीओ कम है, where you can spread the awareness, knowledge, or if you need, we can also do the sessions like this to your clients as well, so that to guide them, so that कि because we are a chartered accountant, हम सब audits, accounting, taxation में तो expert हैं, but this is the area IPO में काम सही है, सेम ही है almost, but थोड़ा different भी है, और एक नई लाइन है, न्यू फीस है। थोड़ा सा आप यू कैन से दैट पब्लिकली आपका नाम भी होता है, बिकॉज ऑडिटर का नाम हमेशा डीआरएसपी में जाता है, और बहुत बार जाता है, मतलब कम से कम 15-20 बार उसका नाम, each and every certificate, each and every balance sheet, each and every statement that you have certified, आपका नाम मेंशन होता है डीआरएसपी में। दैट इज ए गुड क्रेडिबिलिटी, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
कुछ प्रॉब्लम हो गई है यस यस सो slide is visible. Yes, sir. Yes. So we were talking about the valuation, how the valuation of a company in the SME IPO, because this is the profitability method. In main mode IPO, you can see that profitability method and QIP method. जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है लाइक जोमेटो, फ्लिपकार्ट और ये पेटीएम, वो क्यूआईबी मेथड से जाते हैं. बट एसएमई आईपी में ओनली सिंगल मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाई price earning ratio of your industry, of your peers, of your recent IPOs has been launched. तो अब सपोज आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 CR है और नाउ डेज अराउंड 12 to 15 का मल्टीपल एज पर द मार्केट नॉर्म. एक टाइम पे 20 का मल्टीपल भी होता था. इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर अराउंड सितंबर अक्टूबर 20 का मल्टीपल भी चलता था. बट आज की डेट में 10 to 15 का मल्टीपल भी मार्केट में आ रहा है. आप देख सकते हैं. यू कैन सी द वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com. you can analyze all the IPOs are coming on daily basis. तो सपोज आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 CR है. इन अ फर्स्ट स्लाइड आई हैव शोन यू दैट मिनिमम EBITDA इज 1 CR. तो वो केवल एक मिनिमम क्राइटेरिया है. बट प्रैक्टिकली आपका EBITDA अराउंड 10 to 9 CR होना चाहिए. देन वो 30% 25% टैक्स के बाद 5 to 6 CR आता है. तो सपोज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5 CR और वी टॉक अबाउट मल्टीपल के हाईएस्ट इज 15. तो टोटल वैल्यूएशन हो गई आपकी 75 CR. तो 75 CR की आपकी कंपनी की वैल्यूएशन एज पर द एसएमई आईपीओ रूल्स. और इसका 25% आपका इक्विटी डाइल्यूट होती है. तो आपका आप समझिए कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 75 CR है और प्रोमोटर के पास 100% इक्विटी शेयर्स हैं. देन आपके पास अराउंड 18 CR 18.75 CR अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो कि 20 CR के आसपास फंड रिलीज होता है फ्रॉम द पब्लिक. और आपकी 25% इक्विटी ही डाइल्यूट होती है. मिनिमम क्राइटेरिया 25% है एसएमई आईपीओ में. आपको 25% की इक्विटी प्रोमोटर को डाइल्यूट करनी होती है, वो जो पब्लिक के पास जाती है. कुछ एआईएफ्स हैं, क्यूआईबीज हैं और रिटेल पब्लिक है. टोटल 25% इक्विटी डाइल्यूट होती है. तो अगर 75% की आपकी वैल्यूएशन है, यू कैन गेट अराउंड 18 to 19 और 20 CR वैल्यू ऑफ रुपीज फ्रॉम द मार्केट और आप उसको ग्रोथ कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फंड. तो यूज ऑफ फंड्स कैन बी ए मार्केटिंग. आपको अपनी कंपनी की मार्केटिंग में पैसा लगाना है. आपको एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है. आपको अपनी बैंक का लोन पे करना है. दैट इज ऑल्सो अलाउड. बट समटाइम्स यू हैव सीन ऑल्सो देयर कि यू कांट पे द लोन ऑफ रिलेटेड पार्टीज, डायरेक्टर्स और सम क्लोज रिलेटेड कंपनीज. तो रिलेटेड पार्टी को आप अपने उस फंड से लोन आप पे नहीं कर सकते. बहुत लिमिटेड सही सेक्शन अलाउड है उसमें. 10 to 20% ही कर सकते हैं. 100% नहीं कर पाओगे आप. So you can pay the bank loan easily. You can start a new factory. You can hire new talents. You can launch your new products. So this kind of majorly use of funds we have seen. And normally यही होता है सब कंपनीज को. इसीलिए फंड चाहिए होता है, ग्रोथ कैपिटल, टू स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री, न्यू प्रोडक्ट, मार्केटिंग. So that kind of area you can use the funds. So valuation, profit after tax multiplied by P ratio or some other factors also like leverage ratio, return to equity ratio. So other उन सबको मिक्स करके ही एक जनरली वैल्यूएशन होती है. बट यू कैन आइडेंटिफाई पैट मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो. तो इन सब फैक्टर्स को लेकर ही हम एसएमई आईपीओ में वैल्यूएशन करते हैं. तो 25% इक्विटी पब्लिक के पास चली जाती है, 75% आपके पास रह जाती है. इसमें एक ऑप्शन होता है कि सपोज इफ यू हैव लॉन्च एसएमई आईपीओ टुडे, सपोज आपने 2 साल वर्कआउट किया, अच्छे फाइनेंशियल्स पब्लिश करे, अच्छी फैक्ट्री लगाई, देन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, सेल इंक्रीज हुई. उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आप फॉलो अप आईपीओ कर सकते हो. उसमें आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है. सपोज आज 100 की है, 2 ईयर बाद आपकी 500 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो आपको फिर फंड चाहिए तो आप फॉलो अप आईपीओ कर सकते हो. आपने 10% इक्विटी डाइल्यूट करी तो आपकी वैल्यूएशन ज्यादा हुई, इक्विटी कम गई, पैसे आपको उतने ही मिले. तो दैट कैन ऑल्सो बी ऑप्शन. बहुत सारे एसएमईज इस पे करते हैं. और इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि
clients ask us so many times कि हम मेन बोर्ड क्यों ना करें, SME क्यों करें, बिकॉज SME की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा लिबरल है, अराउंड 50 CR की टर्नओवर वाली कंपनी भी ज्यादा है। आज आप SME IPO करते हैं, विद इन नेक्स्ट 3 years यू विल गेट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अगर आप आफ्टर द ग्रोथ आपकी टर्नओवर 500 CR 1000 CR हो गई और आप मेन बोर्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो जस्ट टू फाइल द डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंपनी इस SME स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांसफर होके मेन बोर्ड एक्सचेंज पे आ जाती है, लाइक NSE और BSE, जो मेन NSE BSE है। So you can transfer easily from NSE emerged and BSE SME to NSE BSE according to your growth, according to your valuation, according to your numbers. So any question in the valuation part? नहीं सर, बट एक बात थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया, एक प्रैक्टिकल मतलब कुछ एग्जांपल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, anytime anytime. Yes. Some energy is missing. Either you are मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ एक तो है। बताइए क्या क्या रीजन है। आप आर यू एबल टू गेटिंग मी? यस सर, विच आई एम ये ट्राइंग टू से हमारे लिए आपको मतलब मेरे लिए मतलब। यस मैम। सर समझ में आ रहा है। अच्छी चीज़ों को ना धैर्यपूर्वक सुनते हैं। नहीं, पहले मेरे को ये बताइए कि जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस सर। एम आई ऑडिबल और आई एम एक्सप्लेनिंग वेल, और कोई कोई इश्यू तो नहीं है? नींद वींद तो किसी को नहीं आ रही ना? आर यू नॉट स्लीपिंग? नहीं नहीं सर, लगे हुए हैं चैटिंग में, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं आई नीड अच्छा, मोर आंसर। अगर आपको ऐसा चाहिए ना तो हम सब मेंबर्स से एक एक मैसेज चैट बॉक्स में ले सकते हैं करेक्ट, कि ये किस ये पर्पस से उन्होंने वेबिनार ज्वाइन या किया है। ये दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो तो मेंबर्स, यू कैन प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। तो दो आंसर है, आइदर यू आर लुकिंग फॉर योर क्लाइंट्स और आप अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं। कि सपोज आपके कोई क्लाइंट, आप चाहते हैं कि उनका IPO आए और आप चाहते हैं कि मैं IPO में कितनी अपॉर्चुनिटीज ले सकता हूँ। तो A फॉर योर क्लाइंट्स, B फॉर योर ग्रोथ। टेल मी इन द चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट। ग्रेट ग्रेट विशाल जी, ग्रेट। अभी एक बहुत अच्छी स्लाइड आएगी, यू विल वेरी थैंकफुल टू मिस्टर राज चावला कि CS के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और आज आपको वो इट विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल क्या क्या हो सकता है हम CS के लिए अपॉर्चुनिटी। ग्रेट ग्रेट मिस्टर कंवल, ग्रेट। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। So, any question from your side in the eligibility criteria or in the benefits of SME IPO? You can ask me. सर आपका ये जो आप पढ़ा रहे हो ना, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा फ्लो में अच्छा जा लग रहा रहे है? थे तो फिर क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। नहीं नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देखो, स्पीकर को भी मजा तभी आता है जब पब्लिक पार्टिसिपेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, थोड़ा सा आंसर्स करते हैं, एनर्जी बनी रहती है। चलो लेट्स स्टार्ट। So, valuation we have discussed. Any question you can I can also take after the session, or personally you can also connect me. Yes, एक क्वेश्चन आता है compliance का। We have seen so many questions from the clients or some chartered accountant or some other consultant. तो compliance में क्या change आता है? So there, what are the changes in the compliance? Because whenever you go for the SME IPO, you have to be converted to the public limited company.
पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यू नो दैट कंपनी एक्ट की कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हमारे सेक्शंस अप्लीकेबल हो जाते हैं उसमें। वो हर चीज़ के लिए आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। बट यस, इन एसएमई आईपीओ दे आर टू मच लिबरल एज कम्पेयर टू मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अपने फाइनेंशियल साल में 4 बार रिलीज करने होते हैं तो एक्सचेंज को। यू हैव टू डू द क्वार्टरली ऑडिट, बट इन एसएमई आईपीओ यू हैव टू डू द ट्वाइस, हाफ ईयरली ऑडिट होता है। रेस्ट मेजरली सब सेम होती हैं, बट these are the compliance nothing like that as compared to the benefit you are getting in the SME IPO। तो SME IPO के बेनिफिट्स इतने हैं बिकॉज एक छोटी कंपनी अगर आईपीओ में जा रही है, थोड़े बहुत चेंजेस अगर अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, एसओपी में ये सब करने पड़ते हैं, तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट। एक आपकी कंपनी एक स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, एसओपीज बन जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज कंपनी बन जाती है बिकॉज हर चीज की अप्रूवल होती है। और आपकी जो कंपनी है पब्लिक हो गई हो, तो पब्लिक का अगर कंपनी है तो देन आपको अपनी कुछ सिस्टमेटिक अपनी अकाउंटिंग है, अपनी एसओपीज है, अपने प्रोसेसेस हैं, उसको सिस्टमेटिक करना पड़ता है। और आई थिंक उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई हेजिटेशन भी नहीं होनी चाहिए किसी को, बिकॉज उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर आपकी कंपनी अगर 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंचती है तो उसके सामने बेनिफिट दे आर नथिंग, दे आर पीनट्स। तो साल में 2 बार ऑडिट करना होता है, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक छोटी कंपनी का साल में 2 बार ऑडिट कीजिए, आपकी फीस अच्छी बनती है आपकी, और वो फाइनेंशियल्स आपके नाम के साथ पब्लिश भी होते हैं, तो दैट्स अ गुड क्रेडिबिलिटी। और हम सभी जानते हैं कि एक असाइनमेंट के बेसिस पे दूसरा असाइनमेंट हम कैसे लेते हैं। तो यही है, एक बार आपके पास असाइनमेंट आया, आपका करंट क्लाइंट है, उसका आईपीओ लॉन्च हुआ, आपने उसको फाइनेंशियल्स बनाए, सर्टिफिकेट दिए, आपका नाम आगे गया, तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स यू कैन गेट इट। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साल में 2 बार ऑडिट करना है, यू कैन डू इट। तो मेन बोर्ड के कंपैरिजन में कंप्लायंसेस कम है, बट है पब्लिक लिमिटेड की कंप्लायंस है जो कि रिक्वायर्ड भी है अगर ऐसे भी आईपीओ प्रोसेस करना है, तो दैट इज मस्ट। सर इसकी चेकलिस्ट कहाँ होती है मिलने की? किस टाइप की चेकलिस्ट? ये जैसे भी आपने बताया ना, इसको साल में 2 बार ऑडिट करवाना होता है। तो जो नॉर्मल ऑडिट करते हो वही करते हैं, बस उसके जो फॉर्मेटिंग, जो रिजल्ट पब्लिश होते हैं उसका फॉर्मेट सेबी के एलओडीआर एग्रीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में हाँ लिखा वो हो। तो होता ही है ऑडिट तो हाँ, उसके। तो चेकलिस्ट ऑडिट तो वही नॉर्मल है, जो आपको ऑडिट करना है वही करना है, आपको नहीं बैंक नहीं नहीं, कंफर्मेशन इसके लेनी है। कंप्लायंसेस की चेकलिस्ट की इसके। एक पब्लिक लिमिटेड की जो भी कंप्लाइंसेज है कंपनी एक्ट में, तो मेजरली वो कंपनी सेक्रेटरी का रोल ज्यादा आता है उसमें, फॉर द होल कंप्लाइंस हो एज पर द कंपनी एक्ट, एज पर द सेबी। जो सेबी को रिक्वायरमेंट होती है, आपके डायरेक्टर्स हैं, अगर कोई भी शेयर्स, उनका शेयर होल्डिंग चेंज होती है मोर देन 10% प्रोमोटर्स की, वो सेबी में रिपोर्ट करनी होती है। आपकी कमेटीज बनती हैं, ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, एक वुमेन डायरेक्टर होते हैं। तो टोटल 7 शेयर होल्डर्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड, 1 वीमेन डायरेक्टर, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो ये जो कंप्लायंसेस है मेन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की जैसे सिमिलर होती है ऑलमोस्ट। और ऑडिट में ये फर्क है कि साल में 2 बार ऑडिट करना होता है। रेस्ट एक लिस्टेड कंपनी जैसे चलती है वैसे ही एसएमई आईपीओ की कंपनी भी रन करती है। उसमें कमेटीज होती हैं, बोर्ड होता है, रिव्यू प्रोसीजर्स होते हैं, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होता है, इन्वेस्टर कंप्लेन कमेटी होती है, जो भी इन्वेस्टर की कंप्लेन आती है उसको हैंडल करने के लिए एक फुल टाइम सीएस हायर करते हैं, एक सीएफओ होना मस्ट है। तो ये कंप्लायंसेस सारी जो भी पब्लिक लिमिटेड की हैं वो सब होती है। आई गाइड यू, बल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कर वो तो चेक ऑन द गूगल और कंपनी सेक्रेटरी से पूछें, ठीक वो है मिल सर। जाएगी। तो दीज आर द मेजर चेंजेस जो आपकी कंपनी में आते हैं। दिस इज द प्रोसीजर कि आईपीओ फाइल कैसे होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा कि हम कैसे एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं, एक आईपीओ का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो suppose you are a unlisted company, we check the eligibility first, we check the eligibility criteria। आपका eligibility criteria check करके financials, we do some financial due diligence analysis कि जो जो criteria है वो fit हो रहा है। If the fitted is there, then we can start the engagement। आपकी सारी preparation होती है, आपका ड्यू डिलीजेंस होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस, नंबर्स आपके रेडी होते हैं। जो भी एनएससी में सपोज फ्री कैश फ्लो का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। तो जब वो क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो जाता है तो एक
आगे हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, DRHP जिसको बोलते हैं। तो उससे पहले सारे चेंजेस होते हैं, आपकी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होती है, आपके सारे शेयर होल्डर्स, आपके सारे डायरेक्टर्स, आपकी सारी कमेटीज बनती हैं, आपका जो सपोज आपका कोई एक सबसे बड़ा पॉइंट इसमें आता है कि जनरली MSMEs के ऑफिस कई बार रेजिडेंशियल प्लेसेस में भी होते हैं। तो सपोज रेजिडेंशियल में है तो उसको कमर्शियल स्पेस पे कन्वर्ट होना है, जो भी उनका एड्रेस वगैरह है प्रॉपर होना चाहिए, सारे एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने चाहिए, लीज एग्रीमेंट है या और भी कोई मेजर एग्रीमेंट उनके हैं तो वो आपके सब रजिस्ट्रार के पास कोर्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो दिस आर द बिग डिटेल्ड प्रोसेस, मतलब देयर आर सेवरल रिक्वायरमेंट दैट हैव टू बी डू बिफोर द फाइलिंग ऑफ DRHP। DRHP हम बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जो भी सेबी के पास फर्स्ट एप्लीकेशन जाती है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन जाती है कि कंपनीज में आज की डेट में ये है, इतने शेयर होल्डर्स हैं, इतने प्रोमोटर्स हैं, ये बिजनेस है, ये बिजनेस की हिस्ट्री है, ये फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आई टेल यू कि एक पीयर रिव्यू ऑडिटर का, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट इज योर रोल इन दैट। तो सारे फाइनेंशियल्स, लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर के फाइनेंशियल्स आपके DRHP में पब्लिश होते हैं, सर्टिफिकेट सब जाते हैं। तो एक अराउंड 300 to 400 की एक एप्लीकेशन फाइल होती है स्टॉक एक्सचेंज को, आइदर वो NSE है, आइदर वो BSE है। तो NSE और BSE में जो भी आपकी DRHP फाइल होता है उसमें अराउंड 300 to 400 पेजेस होते हैं। सारी फाइनेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ, आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी फाइल टू सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। सॉरी, मेन बोर्ड में सेबी होता है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, आइदर NSE मर्ज और BSE SME। So they take around 2 to 3 months for the approval. They ask so many questions. They sometimes visit to client's office. मर्चेंट बैंकर हम अपॉइंट करते हैं, तो सारा काम मर्चेंट बैंकर फाइल करते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो एक हमने सारी प्रोसेसेस करके, सब डॉक्यूमेंटेशन ठीक करके, कंप्लायंसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिजनेस जो भी इनकी चैलेंजेस थे वो कंप्लीट करके एक एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन हमने फाइल करी, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल। स्टेप 2 इज देयर। Step 1 is the preparation, compliances, conversion of public limited company for the documents, due diligence. Then we prepare a 300 to 400 pages document, draft red herring prospectus, जिसे DRHP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप कभी भी गूगल पे जा सकते हैं, आपको लगता है कंपनी का IPO आ रहा है, यू कैन चेक द DRHP, और उसमें देखिए CA के नाम कम से कम भी 20 से 30 बार उस CA का नाम आता है DRHP में। तो फिर सेबी एक स्टॉक एक्सचेंज एक अप्रूवल देता है कि यस, आपके DRHP में ये चेंजेस कर दीजिए, जो भी चेंजेस वो रिकमेंड करते हैं। देन वो कहते हैं कि अब आप एक RHP यानी फाइनल डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कीजिए। तो एक बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक पीयर रिव्यू ऑडिटर, आपको 2 बार फाइनेंशियल देने पड़ते हैं, तो ड्राफ्ट DRHP के टाइम, फिर इसमें 2-3 महीने का प्रोसेस लगता है। तो जब RHP आता है तो पीरियड चेंज हो जाता है। सपोज अभी हमने मार्च के बेसिस पे फाइल किया, तो जून या सितंबर के फाइनेंशियल्स दोबारा ऑडिट होते हैं, दोबारा सर्टिफिकेट बनता है, दोबारा रीस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं। किसी कंपनी में कंसोलिडेशन होता है, किसी में स्टैंड लोन होता है, तो RHP में दोबारा वो डॉक्यूमेंट सारे रिवाइज हो गए विद अपडेटेड नंबर, विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन, विद अपडेटेड इन्वेस्टर्स, वो हम फाइल करते हैं। देन सेबी एक अप्रूव करता है इस चीज को। इससे पहले हम एक इन्वेस्टर रोड शो, मार्केटिंग, लाइक आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में किसी कंपनी का DRHP फाइल हुआ तो देन दे आस्क फॉर, इन्वेस्टर के क्वेश्चंस आते हैं, हम इन्वेस्टर को पिच करते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए एज ए एंकर इन्वेस्टर, एज ए QIB। तो उस कंपनी की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, विच आई टोल्ड यू दैट न्यूज़पेपर में, पब्लिक मीडिया में ये सब मार्केटिंग होती है, विच इज एज पर द स्टॉक एक्सचेंज रूल्स। कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, सब क्राइटेरिया हैं, उसके हिसाब से ही मार्केटिंग और ये आपके पिच डेक पब्लिश होते हैं। देन वो फाइनल RHP अगर अप्रूव होता है, देन उसके बाद पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है। 2-3 डेज के लिए आपका IPO ओपन होता है, शेयर प्राइस डिसाइड होता है। जब कंपनी के पास पैसा आता है, और फिर एक लिस्टिंग सेरेमनी करते हैं। मैं आपको 1-2 अपनी लिस्टिंग सेरेमनी की फोटोज भी शो करूंगा, इफ यू कैन कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, आई शेयर दैट। उस लिस्टिंग सेरेमनी में उस कंपनी का प्राइस, सपोज स्टॉक एक्सचेंज आपका 9 o'clock ओपन होता है, तो उसी दिन
एक लिस्टिंग सेरेमनी होती है. यू कैन इनवाइट योर क्लाइंट्स, सीएस, कंसल्टेंट हु हेल्प इनटू द आईपीओ प्रोसेस. वो सब वहाँ पे समटाइम एनएससी ऑफिस, बीएससी ऑफिस, मुंबई, दिल्ली, वेर एवर यू वांट. जो प्राइस लिस्ट होता है वो एक बड़ी सी स्क्रीन पे, अराउंड 100 इंचेस की स्क्रीन पे उस सेरेमनी में शो होता है कि कंपनी का प्राइस, लिस्ट प्राइस. सपोज किसी का प्राइस 150 था और वो 180 पे ओपन हुआ, तो दैट एट द टाइम इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर द क्लाइंट. ही विल बी वेरी हैप्पी कि 150 पे मैंने प्राइस ओपन किया, इट्स नाउ इट्स 180. तो वो लिस्टिंग सेरेमनी लास्ट सेरेमनी होती है उस आईपीओ के प्रोसेस की. बट उसके बाद तो दिस इज अ माइलस्टोन, नॉट द एंड ऑफ द जर्नी. उसके बाद फिर वो प्राइस, whenever you publish the financials, a good news into the market, वो प्राइस इंक्रीज होता है और कंपनी की ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होती है. तो दिस इज अ कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनी टू द लिस्टेड कंपनी एंड स्टार्ट ऑफ growth journey for your clients and for yourself as well. So this is the detailed और प्रोसेस फॉर द एसएमई आईपीओ. मतलब मेन बोर्ड का भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उसमें 3-4 स्टेप ज्यादा होते हैं. उसमें डीआरएसपी कुछ 2-3 बार ज्यादा जाता है, कुछ अपडेटेड डीआरएसपी, और फिर तो उसका प्रोसेस थोड़ा बहुत लेंथी है. एसएमई आईपीओ का प्रोसेस मिनिमम 6 मंथ रहता है, 3 to 4 मंथ उनका अप्रूवल का प्रोसेस है. फिर फाइनेंशियल प्रिपरेशन में भी 1-2 मंथ ऑडिट, 2 बार ऑडिट करना होता है, सर्टिफिकेशन है. So that kind of averagely we can say that 8 months to 1 year it takes in one company's SME IPO. So any question from this slide for the process? मतलब means you are all are the financial expert. तो सभी को पता है कि आईपीओ में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस है. So nothing is new in it for you. Just to elaborate. तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, which is totally for the agenda of this slide. I was discussing with राज चावला जी कि कैसे कर सकते हैं कि अवेयरनेस फॉर द सीएज कि हम क्या क्या काम इसमें आईपीओज में कर सकते हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या उनकी नेम एंड फेम एज वेल. मतलब आपने एक आईपीओ में काम किया, वो अच्छा सक्सेसफुल रहता है, तो आपका भी बहुत अच्छा नाम होता है कि दिस वाज द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दैट लिस्टेड कंपनी हु हेल्प्ड इनटू द आरएसपी एंड डीआरएसपी प्रोसेस. सो अकॉर्डिंगली आपके पास भी वो वाले क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस इज अ स्लाइड फॉर ऑल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन द मीटिंग. क्या हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसएमई आईपीओ हो या मेन बोर्ड आईपीओ, we need a peer review audit CA firm. We need a peer review auditor. So अगर आपकी फर्म peer review auditor नहीं है, then you can go for the peer review audit. आप अपनी CA firm का ऑडिट कराइए और peer review सर्टिफिकेट लीजिए. आईपीओ में peer review सर्टिफाइड CA firm ही उसका ऑडिट कर सकती है. जनरली क्या होता है कि किसी क्लाइंट पे अगर peer review auditor नहीं है, जो उसका ऑडिटर है, he is not a peer review CA firm, तो हमें दूसरा peer review CA firm अपॉइंट करना होता है. और तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, पहले आप पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लीजिए, अपने क्लाइंट को बोलिए आईपीओ कीजिए क्योंकि मेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, आई विल बी योर ऑडिटर. और हमारे लिए भी बीइंग द आईपीओ एडवाइजर, हमारे लिए भी इजी रहता है कि आप उस कंपनी में काफी टाइम से ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल उसके बिजनेस में आइडिया है. अगर आपको पता है कि कोई चीज ऐसी है जो कि पब्लिक में करेक्ट होके जानी चाहिए, या फिर कोई क्लासिफिकेशन है या कुछ चेंजेस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करने हैं, तो वो आपके पास है, यू कैन डू इजीली, और यू कैन बी ए क्रेडिबल ऑडिटर फॉर ए लिस्टेड एसएमई आईपीओ इंडस्ट्री. तो फर्स्ट इज आपको पीयर रिव्यू ऑडिटर, दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी. फीस भी आपकी बहुत डिसेंट फीस होती है, आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है. इसमें क्या आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके लास्ट 3 इयर्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं, उसको एक रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है. यू कैन ऑल्सो चेक इन सम डीआरएसपी, उसको फॉर्मेट सब होता है. तो आपको जो लास्ट 3-4 ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल को दोबारा सर्टिफाई करना होता है एज ए पीयर रिव्यू ऑडिटर. आइदर यू आर द ऑडिटर और समवन एल्स. आपको एज ए पीयर रिव्यू ऑडिटर उसको रीसर्टिफाई करना होता है, री ऑडिट करना होता है, और आपको मर्चेंट बैंकर को सबमिट करना होता है विद योर ऑडिट रिपोर्ट्स. इसमें अराउंड 30 to 40 सर्टिफिकेट्स बनते हैं एट द टाइम ऑफ डीआरएसपी, एट द टाइम ऑफ आरएसपी एज वेल. तो आपके 80 सर्टिफिकेट हो गए इफ यू काउंट दैट.
numbers. So two times financial statement, restatement of financial statement, two types of certificates. So this is a big opportunity for the CAs being a peer review auditor. तो ये सबसे मेजर अपॉर्चुनिटी है. इसमें हम क्या क्या करते हैं? अदरवाइज आप अगर पीयर रिव्यू ऑडिटर नहीं भी हैं तो लाइक आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस है, आपकी जो रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन है आप उसको एनालाइज करके गाइड कर सकते हैं. बिकॉज अगर कोई नया ऑडिटर भी आता है ऑडिटर, और यू कैन बी अ पॉइंट एज ए कंसल्टेंट कि आप उनको गाइड कर सकते हैं और क्लाइंट के साथ टच में रह सकते हैं कि ये चीज मैंने करी है, आई नो द आइडिया, तो आई कैन हेल्प यू इन SME IPO और मेन बोर्ड IPO. So so many reporting certificates, analysis reports are required where the peer review auditor is not required, but you can do that. Ultimately the peer review auditor certificate is required जो आपको एज ए DRHP में एज ए पब्लिश होता है इन द DRHP. आप इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन कर सकते हैं एज ए पीयर रिव्यू ऑडिटर. आप स्टैच्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं, रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन, टैक्स कंप्लायंस जो भी होती है. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें ये है, एक तो हो गया आपके पीयर रिव्यू ऑडिटर्स, एक एज ए कंसल्टेंट. थर्ड वन आपने सभी ने देखा होगा, यू हैव आल्सो फेसेस सम टाइम विद योर क्लाइंट्स. कुछ जब DRHP में जाते हैं तो सारी कंप्लायंसेस जो भी पिछले 3 या 5 साल की कंप्लायंसेस हैं वो ठीक होनी चाहिए. आइदर वो ROC कंप्लायंस है, आइदर वो GST है, आइदर वो TDS इनकम टैक्स. जो भी पुराने डिफॉल्ट्स हैं, जो भी पुराने डिलेज हैं, उन सबको फुलफिल करना है. सपोज PFISI इज नॉट डिपॉजिटेड, यू कैन हेल्प ये PFI डिपॉजिट करना है. GST जो पेंडिंग पूरा पुराना है, वो कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसको सॉर्ट इट आउट, यू हैव टू बी क्लीन इट अप कि हाँ इसको क्लियर. तो जिस दिन DRHP में कंपनी जाती है उस दिन सारी जो टैक्स लिटिगेशंस हैं, जो नॉन कंप्लायंसेस हैं, वो सब पूरी 100% कंप्लीट होनी चाहिए. सपोज एक कंपनी डायरेक्टर्स के नाम पे कई बार कंपनी बहुत सारी ओपन होती है. दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस अराउंड 5-10 years बैक, दे हैव स्टार्टेड 2-3 कंपनीज, बट आज की डेट में कंपनी बिजनेस केवल एक कंपनी में चल रहा है, उसका वो IPO लेके आ रहे हैं. बट जो पुरानी जो 2-3 कंपनी है उनकी कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई बिकॉज उसमें बिजनेस नहीं था. बिकॉज ऑफ दैट वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गए. आज की डेट में अगर आप DRHP फाइल करेंगे तो यू शुड नॉट बी एज ए डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड. तो पुरानी नॉन कंप्लायंस को ठीक कराना है, उसको गुड करना है. बेसिकली जो कंप्लायंस पूरी है, जो एनुअल रिटर्न मिसिंग है, यू हैव टू फाइल दैट. आपने ROC से डिस्कशन करना है, ROC से यू कैन डिस्कस. टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, टैक्स लिटिगेशंस हैं, टैक्स नॉन कंप्लायंसेस हैं. तो ये भी एक बहुत डिसेंट एरिया है जो आप पुरानी नॉन, बिकॉज यू आर द ऑडिटर और ऑफ द कंपनी और यू नो द कंपनी सीज लॉन्ग टाइम, तो आपको पता है कंप्लायंसेस में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है. तो ये भी एक एरिया है जो दैट यू कैन वर्क इट आउट एंड गेट good decent fees, and you can get good credibility in front of your client. So these are the major areas for the CAs as a peer review auditor, as a consultant, or as a compliance. You can correct the compliances for them. So जो भी IPO में 4-5 साल का पुराना सारा डेटा, ROC, सब कुछ A to Z बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. That you can also help बिकॉज इससे यू विल ऑल्सो गेट क्रेडिबिलिटी और क्लाइंट को भी लगता है कि यू आर स्टिल विद देम. तो सबको आपको भी कई बार लगता होगा कि क्लाइंट के यहाँ ये प्रॉब्लम तो है बट क्लाइंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट और नॉट रेडी टू करेक्ट. बट जब IPO पे जाना है तो वो सारी कंप्लायंसेस करेक्ट होनी है. तो दैट इज द चैलेंज और दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी challenge for the clients. Like we have discussed, what are the challenges faced by the SMEs? These are the challenges because they are non-compliant, non-tax compliant, not PFESI compliant, not MCA compliant. So that is the role we can get it. This is the opportunity for us कि last 5 साल का जो सारी compliances है, that must be correct, true and fair. That is the opportunity for us. We can grab it and do and grow our practice as a peer review auditor or as a consultant or as a जो उनकी compliance ठीक कराने का work है, that we can take it. Any question from this side? हाँ बस नींद आ रही थी. बुड्ढे का बना देना.
क्या बनाना है? मैं ले आऊंगा। Any question from this slide? No answer. So अभी अभी एक क्वेश्चन लेते हैं प्लीज. मिस्टर अभिषेक has asked that please also tell us the challenges in IPO process. I'll tell you that कुछ तो मैंने आपको बताया कि जो challenges क्लाइंट साइड से ही मेजरली आते हैं कि उनके नंबर्स, कई बार तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो बहुत कम रहता है. वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है. फिर नॉन कंप्लायंस इज अ बिग चैलेंज, उसको ठीक करना ही सबसे ज्यादा चैलेंज है. तो जनरली एसएमई आईपीओ में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. केवल अगर इफ यू आर नॉन कंप्लायंट और सम फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, देन वो एसएमई आईपीओ होल्ड होता है, स्टॉक एक्सचेंज उसको बैन करता है. अदरवाइज आपकी इंटेंशन फेयर है, आपकी कंप्लायंसेस पूरी है, आपका प्रोमोटर बिजनेस ठीक है, इन्वेस्टर्स आर देयर, तो आईपीओ इज वेरी मच सक्सेसफुल. मैं कहूंगा इसको 99.9% सक्सेस रेट इज इन एसएमई आईपीओ. जो भी 1% का चैलेंज वो आता है बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस, वहां पे सबसे ज्यादा चैलेंज है. कई बार पूरा 6 साल पुराना कुछ नॉन कंप्लायंस जीएसटी में चल रहा है या एमसीए में चल रहा है, वो करेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. आपने भी कई बार चैलेंज की देखा होगा कि क्लाइंट्स कुछ, मतलब इनिशियल स्टेज पे सो मेनी मिस्टेक्स दे हैव डन. लाइक आई सेड कि कोई पुरानी कंपनी चल रही है, उसकी एनुअल फाइलिंग ही नहीं 4-5 ईयर से कंप्लीट है, जीएसटी की एनुअल फाइलिंग नहीं हो रखी है, आपकी टैक्स का कोई लिटिगेशन चल रहा है पुराना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड. सो दैट काइंड ऑफ एरियाज आर द चैलेंजेस फॉर द आईपीओ. अदरवाइज सारा काम वी कैन एज ए एडवाइजर, मर्चेंट बैंकर्स, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट वहां हम भी चैलेंज फेस करते हैं बिकॉज यू नो द क्या प्रॉब्लम थी 5 साल पहले जो वो नॉन कंप्लायंस हुई. अगर वो आज ठीक हो सकती है तो आईपीओ इज वेरी मच टू गो. सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द कंप्लायंस ओनली. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समटाइम बिजनेस का मॉडल होता है कि ट्रेडिंग बिजनेस है. ट्रेडिंग बिजनेस थोड़ा बहुत चैलेंजिंग इसलिए रहता है कि उसका आईपीओ इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होते बिकॉज ट्रेडिंग में कोई ब्रांड नेम नहीं होता. सपोज आपने एक प्रोडक्ट परचेज करा और आगे ऐसे सेल कर दिया, आपने उसमें कुछ ब्रांडिंग नहीं करी, कुछ चेंजेस नहीं करे, कुछ असेंबली नहीं करी, वहां चैलेंज आता है सभी आईपीओ में. तो 2-3 आर मेजर challenges which are the practical. I said कि compliances और business model, ये दो मेजर अगर ठीक हैं तो आपका आईपीओ आ जाता है. अदरवाइज प्रैक्टिकली तो ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट. तो वो प्रैक्टिकली केस वाइज केस भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं. कई बार क्लाइंट की तरफ से ही इशू आता है कि नहीं हमें आईपीओ नहीं करना. बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जो भी क्लाइंट्स आईपीओ पे, कुछ क्लाइंट तो हैं एलिजिबल है, आपके भी बहुत सारे क्लाइंट्स एलिजिबल तो होंगे, उनकी 100 CR टर्नओवर होगी, 200 CR होगी, बट दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर द आईपीओ बिकॉज उनकी कुछ बिजनेस प्रीवेसी है, बिजनेस क्रेडेंशियल्स हैं, या खुद का सिविल स्कोर इतना अच्छा नहीं है. तो दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज. यू कैन सी दैट दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर द आईपीओ. तो इसी को मैं कंप्लायंस कैटेगरी में ही काउंट करता हूँ कि अगर सिविल अच्छा नहीं है या नॉन कंप्लायंस है या बिजनेस मॉडल उस नेचर का नहीं है या प्रमोटर की इंटेंशन. सो ओनली ये 3-4 ही चैलेंज है जो कि एसएमए आईपीओ से आप देखिए ना. अराउंड 7 करोड़ एसएमईज एमएसएमईज आर रजिस्टर्ड. आई विल नोट से कि 7 करोड़ ही एलिजिबल है. अगर मैं 7 करोड़ में कहता हूँ 1 लाख भी, अगर इवन 1 लाख एसएमईज आर एलिजिबल फॉर एसएमई आईपीओ, बट आज तक केवल आप देखो 14 ईयर्स हो गए एसएमई आईपीओ लॉन्च हुए, आज तक केवल 1500 आईपीओ आए हैं. तो आउट ऑफ 1 लाख भी 1500 इज वेरी नॉमिनल, नेग्लिजिबल फिगर. सो ये सब चैलेंजेस हैं. कई बार प्रोमोटर की इंटेंशन नहीं होती, कई बार उनकी नॉन कंप्लायंस होती है और वो बहुत सीरियस लेवल पे होती है कि वो आईपीओ उनका नहीं आ सकता. सो दिस काइंड ऑफ द चैलेंजेस. और कई बार ट्रेडिंग का बिजनेस है तो वहां पे चैलेंज आते हैं. जनरली मैं कहूंगा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक सर्विस इंडस्ट्री इज ए वेरी गुड गो टू एसएमई आईपीओ. ट्रेडिंग में थोड़ा सा रहता है चैलेंज. So these kind of the challenges I will quantify into that. Like first is compliance, second is business model,
थर्ड इज प्रोमोटर इंटेंशन, फोर्थ इज समटाइम्स वैल्यूशन भी आ जाता है कई बार। प्रोमोटर कहता है मेरी वैल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, बट आईपीओ में वैल्यूशन ही 100 CR आ रही है, ही इज आस्किंग फॉर द 1000 CR। तो सब प्रैक्टिकल challenges I will count in four categories. Hope I could be able to answer your question, Mr. Abhishek. So, can we move to the next slide? So, this is the opportunity. मेरे पास सीए की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया. That is very strange. I was expecting so many questions from the opportunities. That should also come. सर आप Any पूछ लो any क्विज questions? क्विज फॉर्मेट में पूछ लो सर। हाँ जी, क्विज फॉर्मेट में. अच्छा, चलो टेल मी हाउ मेनी आर द पीयर रिव्यू ऑडिट फॉर्म इन टुडे सेशन. क्या सर? Peer review audit form. Anyone? So, all of you are who are the practicing chartered accountant and who are the in a job. Job. Yes. Any practicing? Yes. Vishalji in practice. Practice. Great. Job. Great. Great. यार Practicing मैं 20 किसी को years for. बोलूँगी Great. सर Great. सबको तो पढ़ता नहीं है। Gauri ji. मतलब Great. सर क्या Great. Great. So, any peer review CA form practicing Mr. Vishal, are you practice peer review CA form? So if you are not as practicing CA firm, so this is a good opportunity for you. Do your peer review audit, get the peer review certificate, and go for the SME IPO clients. Because मेन बोर्ड क्लाइंट तो बहुत बड़े और बिग लेवल पे होते हैं, बट एसएमई तो आपके आसपास ही हैं. आपके मैं कहता हूँ आपके पास अगर 100 क्लाइंट्स है तो उसमें आपके कम से कम 20 क्लाइंट तो एसएमईज होंगे जिनकी टर्नओवर अराउंड 50 to 100 CR होगी ही होगी. तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लो और उनको एसएमई आईपीओ पे लेके जाओ. गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो एनीथिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम CA's opportunity you can ask. So I have a Come question. I want to ask, like, in a main board IPO, there is a concept of underwriting. So is there a similar concept in SME IPO also? उसमें अंडरराइटिंग 100% शेयर्स के लिए नहीं होती, बट हाँ, एसएमई में तो 100% होती है. तो 100%. अगर रिटेल के भी शेयर्स नहीं आए तो अंडरराइटर को अंडरराइट करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई आई सेड द सक्सेस रेट ऑफ एसएमई आईपीओ इज 99.99%. केवल 0.1% किसी ने सपोज लास्ट और अभी अराउंड 2023 या 24 तक कोई भी आईपीओ फेल नहीं हुआ था. अभी 2-3 सालों में कुछ कंप्लेन्स हुई है कि इन सपोज किसी ने कोई अगर पैसा आईपीओ पे लिया तो वो सब्सिडी में डाइवर्ट कर दिया, या फिर किसी कंपनी की एनुअल फाइलिंग नहीं करी. तो दैट काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंसेस सम कंप्लेंट्स आर देयर, और वो 2-3 आईपीओ ही स्टॉप हुए हैं. अदरवाइज एसएमई आईपीओ का रेट पहले 100% था. So So that is is why there an underwriting is allowed. opportunity around underwriting also? So if we create a group of high net worth individual and they underwrite the IPO before it comes. So basically underwriters के लिए ना सर कुछ QIBs and AIF funds ही allowed होते हैं. Individual can't be underwrite. वो merchant bankers सारे they have so many AIFs, big investors, QIBs. तो वो ही अंडरराइट करते हैं इसको. इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो रिटेल में जाते हैं, जब आईपीओ लॉन्च होता है तो वो रिटेल में शेयर परचेज करते हैं उसकी. So वो opportunity नहीं है. So that वो purely परचेज है. okay. हाँ, रिटेल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो सपोज, बट Retail में अगर तो आप sir done it, sir. हाँ, बट As per अगर the आप ऑडिटर नहीं हो, अगर आप ऑडिटर नहीं हो उस कंपनी के, तो आप उस कंपनी के प्री आईपीओ शेयर्स ले सकते हो. सपोज डीआरएसपी से पहले एक प्री आईपीओ राउंड होता है आईपीओ उस कंपनी का कि अराउंड 3 to 4 CR या 5 CR उनको प्री आईपीओ राउंड चाहिए होता है.
तो वहाँ एज ए इंडिविजुअल यू कैन इन्वेस्ट if you are not in auditor there, because auditor will tell you know Oh, that I'm independence not issue आता है. audited. Okay. So pre-IPO opportunity is for you instead of underwriting. Okay. As a pre-IPO investor, you can invest into that company. आपने suppose 50 lakhs लगाए 1 CR according to the And cluster. there the company can offer some security to the pre-IPO investor. Security means shares they issue to you. Share their issue. Yes, yes. But So then there आपका is a कहना risk है for investor. me. हाँ मतलब pre-IPO investor you can be in a company or your name will go in DRHP as an investor. Okay. Yes. So, pre-IPO opportunity as an individual, not being a chartered accountant, as an individual you can invest. So, for this opportunity is for everyone. Mm-hmm. No, that I understand. So Yes, yes. is that So, as a chartered accountant, you can ask any question. What as kind a of chartered accountant, you come in touch with the high net worth individual who look for such opportunities. So that's ये ये एक और अपॉर्चुनिटी है. Suppose your client is or some companies is looking for pre-IPO investors और आपके client वो HNIs है वो investor है. Then you can shake hand. You can otherwise introduce SME to your IPO client. subscribe so many times normal in allotment तो आता ही नहीं है. यस यस यस. हाँ अलॉटमेंट वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है रिटेल के लिए. तो आपके क्लाइंट्स आप एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से एज ए प्री आईपीओ इन्वेस्टर आप कनेक्ट कर सकते हो. Hmm. दैट कैन बी ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज ए यू कंसिडर कंसल्टेंट. यस. सो एनी अदर क्वेश्चंस? So can we move to the next slide? I think almost is a finished up. Any question so that I should conclude the slide? Sir, regarding the IPO valuation, how the promoter will say, ki, so this is my value. Like say, okay, I do agree. So then they will go for a price equity, comparable market analysis, DCF and all everything. Like, but how exactly they will decide whether they will go strictly as per the valuation or whether it's a like based on negotiations, market expectations or anything. So SME IPO में only valuation is profit after tax multiplied by price earning ratio. P ratio by profit after tax. This is the only method. No Okay. DCF is required. No negotiation is there. Means हाँ like, price uh-huh. P multiple थोड़ा सा ऊपर नीचे on the basis of current market scenario. लाइक आई Okay. सेड कि लास्ट ईयर 20 का मल्टीपल पे भी आईपीओ आए हैं. आज की डेट में 15 भी मुश्किल से आ रहा है. 12 टू Okay. 15 के बीच में आईपीओ आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो, इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स, Okay. इंडस्ट्री, ये सब प्राइस अर्निंग पी मल्टीपल डिस्कशन में ये सब इन्वॉल्वमेंट रहता है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बैलेंस शीट में आ गया. Right. So only to decide P multiple. तो P multiple के so many factors हैं like industry, आपका current market scenario, investor sentiment, कोई अच्छा बिजनेस मॉडल है, अगर टेक बिजनेस चल रहा है तो उसका इन्वेस्टर जल्दी मिल जाते हैं तो मल्टीपल वो नेगोशिएट नहीं करते. एक नॉर्मल इंडस्ट्री है तो इन्वेस्टर भी नेगोशिएट करते हैं कि मल्टीपल एक दो डाउन करने के लिए. So only the P multiple has to be decided in the SME IPO part or profit after tax as per the audited financial, even the restated financial statement we take. Okay, okay. And what type of investors will be there? It's in a general public or any public institutions, like in a trend wise. So then, who are the main investors in the IPO, SME IPO? So it's a mix. Anchor investor would be kind of AIF institutions, QIBs, Okay, or around 50% is a retail. okay, around So 50%. Okay, yes, yes, yes. कई बार ये 70-30 भी हो जाता है, कई बार 60-40 भी हो जाता है. तो मिक्स रहता है ये हमेशा. QIB और बिग इन्वेस्टर्स आर द मेन पार्ट. वो okay, पहले इन्वेस्ट करते हैं, देन वी गो फॉर द पब्लिक. public. Okay, okay. Sure. एंकर Actually, तो regard, फर्स्ट. huh. यस. Is there any restriction regarding the like a shareholding by the promoters, like say post IPO, how much they need to minimum maintain? तो मिनिमम 75%. Post IPO, minimum they need to maintain 75 percentage. Okay. So only 25 percentage is open for public then. Okay. मतलब 25% for the public is minimum.
मतलब थोड़ा Okay. बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 26-27% भी चले जाते हैं, पर Okay. प्रमोटर के पास पोस्ट आईपीओ 70 to 75% रहते हैं। Okay. क्योंकि Okay. देखो सी होता क्या है, ऑप्शन तो ज्यादा का भी मिल सकता है, बट प्रमोटर से नहीं चाहता, क्योंकि आज मेरी इक्विटी फर्स्ट टाइम डाइल्यूट हो रही है, तो आई वुड से मिनिमम टू मिनिमम डाइल्यूट हो। तो Right. 25% इज मिनिमम इन एसएमई आईपीओ, तो वही डाइल्यूट होती है। Okay. तो वो Okay. क्या करते हैं कि आज 25% एसएमई आईपीओ में फर्स्ट राउंड किया, देन आफ्टर 2 years दे गो फॉर द फॉलो अप आईपीओ। वहाँ वैल्यूएशन ज्यादा होती है। सपोज आज 100 CR की है, आफ्टर 2 year 3 year यू विल गेट द 500 crore वैल्यूएशन। तो उस Okay. टाइम आप एफपीओ करोगे तो इक्विटी कम जाएगी, पैसा ज्यादा आएगा। इफ यू Okay. डाइल्यूट होल्ड टुडे अराउंड 40% 30%, तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो वो ट्रांचेस में करते हैं, ताकि मिनिमम क्राइटेरिया 25% पब्लिक को जाना ही जाना है, तो वो मिनिमम ही Okay. करते हैं मैक्सिमम। आप देखिए सारे केसेस में अराउंड 26% ही डाइल्यूट होता है। Okay. Okay. Okay, sir. Got it. But in rarely, suppose if the promoter feels that the market is going to come down, profitability is going to come down, there are fairly good chance that he want to exit by selling it at a higher price. Could not get you after the IPO or before the IPO? Suppose if the business is doing good, if the profitability is expected to improve, I agree with you. So then there is a fairly good chance ki he'll come with a FPO and there he will get a higher price. But there may be some kind of a business where, like say, trend changes immediately. Promoter want to monetize the entire shareholding and he want to exit the company. That is not allowed, 100% तो शेयर। फिर तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा ना, कि अगर आप पूरे बिजनेस से एग्जिट कर रहे हो तो चलाएगा कौन बिजनेस। Ah, right, तो right, दैट right. इज ना। Any cases are like that. So then, okay, तो इसमें एक ओवरफेस का ऑप्शन होता है, ऑफर फॉर सेल। okay, okay, उसमें प्रमोटर भी अपने कुछ शेयर सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पब्लिक के लिए ही जाते हैं। तो कुछ okay, क्राइटेरिया है इसमें कि अराउंड 10% ऑफ टोटल आईपीओ साइज, और उस शेयर होल्डर का 50% से ज्यादा वो ओएफएस नहीं कर सकते। मतलब oh, प्रमोटर अपने पर्सनल शेयर भी कुछ आईपीओ में सेल करते हैं इफ समवन okay, इज रिक्वायर्ड, बट जनरली वो ना नेगेटिव जाता है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। बिकॉज इन्वेस्टर सोचते हैं कि आप अपने शेयर क्यों सेल कर रहे हो, इसका मतलब आपको खुद ही ट्रस्ट नहीं है, या तो आपको पैसे चाहिए, या फिर आप बिजनेस नहीं करना चाहते। तो सच okay, काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर देयर, बट हाँ कुछ केसेस में ओएफएस भी होता है आईपीओ पे। okay. यस। Oh, okay, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। तो शुड वी कंटिन्यू और शुड वी कंक्लूड? कटोरी क्यों खराब? So hope you enjoyed the इससे ठंडा session. में I पानी conclude the session. अरे दो I उसको, would like to say ऐसे मत दो, देना तो कि ढंग से दो आपका, नहीं तो मत एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ सबको, कि आपका बीता हुआ वक्त गवाही दे या ना दे, आपका आने वाला वक्त सलामी जरूर देगा। आपको कोई और पैसे दे या ना दे, एसएमई को आपको पैसा और कामयाबी जरूर देगा। दैट इज द गारंटी बाय मी। एंड यू नो दैट आपने सबने एसएमई आईपीओ का प्रोसेस सुना, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्रोमोटर्स के लिए आईपीओ, आपके बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अदर कंसल्टेंट, ऑल ऑफ देम। अगर आपको कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई, देन मेरे यू रूम कैन में आस्क रखो। मी द क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर दैट। यस विशाल जी, आई कैन शेयर माय नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी तो छोटा ही है कप। कोई बात नहीं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। और जो सेशन के ब्रोशर्स रिलीज हुए थे उसमें भी मेरा नंबर है। इफ यू मिस आउट देन यू कैन टेक फ्रॉम देयर एनीथिंग, यू कैन आस्क क्वेश्चन पर्सनली एज वेल, वी कैन मीट। और एक सर का अवार्ड भी मेरे पास है, यू कैन कलेक्ट मी, मिस्टर शशिधर राजू। Sir, I'm based out of Hyderabad actually. कोई बात नहीं, वेन एवर वी मीट आई विल courier to you, not an issue। Sure, sure, sir. Sure. Thank you. Thank you, sir. Definitely, you can ping me your address, I will courier it। Sure, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you. Yes, yes। So hope you enjoyed it, but मेरे को थोड़ा सा एनर्जी कम लगा, बट आप बताइए। आई होप you got all the answers, you understand what is the SME IPO process and what are the opportunity for the CAs। Any doubt or any question you can ask me। So can we get access to this PPT? PPT I'll share that, because this is very proprietary for me, because मेरे को काफी
एटलीस्ट 1 ईयर लग गया इस पीपीटी को जनरेट करने में। टू मेनी कस्टमाइजेशन सारा। अभी मैंने लास्ट टाइम अराउंड 3-4 मंथ मैंने कुछ प्रेजेंटेशन दी, तो मैंने एआई से कन्वर्ट की इसको। अभी थोड़ा एआई आ गया है, पहले बहुत ही सिंपल सी हुआ करती थी काफी, बट आई विल शेयर विद दैट, नॉट एन Okay, thank you so much, sir. Thanks for this insightful session. इशू। Hope you enjoyed that and got some useful knowledge. Yes, sir. I'm a newly qualified chartered accountant. Oh, great, great, great. Where are you working? Vash Associates, Chanpat. Okay, okay, in CA firm. Yeah. No, it's a And law firm, actually. it's a law firm. Okay, great, great. So, Dolly ma'am, please help me out. Thank you, Kamaljeet ji. जी सर। Thanks all of you to bear with me. Thank you so much, sir, for sharing such valuable insights, and also, ma'am, for moderating the session. And Yes. thank you so much, sir. Thank you so much. Also, to our participants, Thanks all of you. have a wonderful day. सर इसका प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ और हो जो हमें इसमें मतलब हाउ वी कैन अप्रोच, क्योंकि हमें मतलब 40 करोड़ वाले क्लाइंट्स तो नहीं मिलने वाले हैं, मतलब बीइंग एट। नहीं, तो सर कैसे होगा इसमें जो इसमें मतलब प्रैक्टिस क्योंकि देखो ये सर है, आपने जो अपॉर्चुनिटीज बताई है ना डाउन द लाइन भी, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके बहुत सारे सबसेट्स हैं जिसमें वी हैव द अपॉर्चुनिटी। एक और मैं आपको सबको बताता हूँ। ये वेबसाइट है, इस पे आप डेली बेस पे आईपीओ सर्च कर सकते हैं। ओके जो भी डेली एसएमई आईपीओ आते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कीजिए, कितना उनका प्रॉफिट है, कितना रिवेन्यू है, क्या पी मल्टीपल है, क्या वैल्यूएशन है। तो यू कैन ट्रैक इट वेरी इजीली, और ये वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली है, यू कैन चेक इट। ओके सर, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी कल संडे है तो इस पे थोड़ा सा तो R&D करूंगी। बिल्कुल कीजिए, चित्तौड़गढ़ में जाएंगे आपको सब कुछ मिलेगा। दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। और इनके कुछ डीआरएचपी आप डाउनलोड कीजिए, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें जो रीस्टेटमेंट फाइनेंशियल दिया होता है कि आपने जो सीए है उनका ऑडिटर ने क्या साइन किया है, क्या उसमें कंटेंट है, क्या उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल से नंबर चेंज किए हैं, आप वो एनालिस कीजिए। इस वेबसाइट पे आप डीआरएसपी उठाइए। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको डीआरएसपी मतलब पूरा तो काफी डिफिकल्ट है पढ़ना, उसमें फाइनेंशियल चैप्टर्स आप रीड कीजिए, जो रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप पढ़िए। उसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि ये आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो क्या हो सकता है। थैंक यू सर। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी। आप उसमें सर्टिफिकेट्स काफी मतलब यू कैन से दैट हम 60 से 70 सर्टिफिकेट देते हैं एक आईपीओ में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 2 टाइम्स वी गिव, वन एट द टाइम ऑफ डीआरएसपी एंड सेकंड इज द आरएचपी। तो आप उस डीआरएसपी को स्टडी कीजिए, यू विल गेट सो मेनी नॉलेज अबाउट द एसएमई आईपीओ। चीज वही है जो भी आप आज ऑडिट करते हैं, बट उसका प्रोसेस बहुत हाई लेवल है, और वो पब्लिकली फाइनेंशियल जाते हैं, क्या क्या उसमें स्कोप है आपके लिए, उसको स्टडी कीजिए, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सर ये आईपीओ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बनते हैं? आईपीओ में आप अगर इसके लिए कुछ एक एग्जाम क्लियर करना होता है एमसीए का, यू आर रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो हर आईपीओ कंपनी में 1 या 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं। मेन बोर्ड में भी चाहिए होते हैं। मेन बोर्ड में तो फीस बहुत अच्छी होती है, तो यू कैन बी ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी तो आजकल तो बहुत सारे स्कोप है, लाइक वैल्यूएशन का स्कोप है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, पीयर रिव्यू ऑडिटर का है। तो ये तो एक सर्टिफाइड कोर्सेज हैं और सर्टिफिकेट्स हैं दैट यू हैव टू गेट इट, और आईपीओ में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीयर रिव्यू सीए की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन गेट इट। ठीक है सर। वैल्यूएशन काफी अच्छा है। अभी जो आपने पढ़ाया उसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए भी, फिर जब अपना थोड़ा नॉलेज एक्सपेंड होगा तो वी विल आल्सो फेच आवर नहीं, क्लाइंट्स। आप सबसे पहले आप डीआरएसपी स्टडी कीजिए, दैट इज मोर नॉलेजेबल। आपने वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, बट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में होते हैं।
डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके, आप उसको देखो, वहाँ बहुत अच्छा है स्कोप। Sir, what is your name? My name is Chandan Pahwa. You can text me on my WhatsApp number. I'll message you and reply you. My number. I'll message you. मेंबर्स की और कोई क्वेरी है? अदरवाइज वी कैन क्लोज। Mr. Pava. Yes. Sanjay Pava. नहीं, चंदन पावा। Chandan. Yes. My name. थैंक यू सर, रियली इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा डेलिब्रेशन था, जहाँ स्टार्टिंग में आपने खुद एनर्जी भी काफ़ी अच्छी क्रिएट करवाई सर। थैंक यू। ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा सा अगर एनर्जी ना रहे तो मजा नहीं आता, बिकॉज बीइंग ए स्पीकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ डाउट्स आते हैं, दैट इज गुड एनर्जी। और ये तो एरिया ही हम सीएस के लिए बहुत अच्छा है। न्यू है आई नो, बट बहुत अभी तो आप सोचो, मैंने बोला कि अगर 7 करोड़ में से 1 लाख आईपीओ भी अभी आने हैं, उसमें से केवल 1500 ही आए हैं। तो सोचो कितने आईपीओ पेंडिंग है, कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें ग्रैब करनी है, कितना फ्यूचर बहुत अच्छा है हमारे लिए। आपकी प्रैक्टिस, ये बहुत एक एरिया ऐसा है, बिकॉज हम सब चैलेंज फेस करते हैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि ऑफिशियली तो नहीं कहूंगा, बट फीस के मामले में तो ये एक एरिया ऐसा है जहाँ अच्छी रिम्यूनरेशन भी है। और आईपीओ एक ऐसा एरिया है, एक बार आपने इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एरिया है। आईपीओ आएंगे ही आएंगे, एसएमई है, मेन बोर्ड है, सो मेनी आईपीओ आर कमिंग अराउंड 300-400 पर ईयर। तो इसमें प्रैक्टिस एक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सीएस। बाबा जी, क्लाइंट को कैसे मनवाएं, कितनी कॉस्ट लगेगी स्टार्टिंग में? तो ये मैं आपको 1-to-1 आंसर दूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स इंडस्ट्री और बिजनेस वो कॉस्ट एक डिसाइड होती है, बिकॉज सो मेनी फीस ऑफ द अंडर राइटिंग एज वेल। आप एक बार क्लाइंट के साथ, तो हम कैसे करते हैं, यू कैन कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल एक्सप्लेन यू कि क्लाइंट के सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं कि उसके नंबर्स कितने हैं। फर्स्ट स्टेप इज द नंबर्स। फिर उसके बाद जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो सारी पुरानी कंप्लायंसेस भी जो ठीक करनी होती है, यू नो बेटर, वो उसको वहाँ पे ठीक करके कर सकते हैं। सबसे मेजर है नंबर क्राइटेरिया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो अगर मीट हो रहा है, अराउंड 40-50 सीआर टर्नओवर है, 100 सीआर टर्नओवर है, तो वो मीट हो जाता है जनरली, क्योंकि नेट अगर टर्नओवर है, प्रॉफिट है, तो नेटवर्क भी इंक्रीज हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके एसेट्स भी हैं, तो नथिंग लाइक दैट। नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर की वैल्यूएशन, आईपीओ की वैल्यूएशन, वो सबसे क्वेश्चनिंग फैक्टर है। सर फिर भी एक रेंज जो मिनिमम होगी। सो जनरली तो सर आज की डेट में 10-15% के आसपास का वो आता है एक्सपेंस। कॉस्टिंग जैसे 100 करोड़ का लाए तो आएगा, वन टाइम इतना आ जाता है। 100 में 15 थोड़ा करोड़ कम हो जाता है, हाँ, इसमें थोड़ा कम हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, वो नंबर रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, अगर बिजनेस मॉडल है अच्छा है तो इन्वेस्टर्स जल्दी आ जाते हैं। तो दैट वी कैन कनेक्ट ओवर द व्हाट्सएप। Okay. Over the stages of incurring of this 15 crore for 100 crore IPO, it is not on one go one has to pay. It हाँ, is in इंस्टॉलमेंट में जाता है, सब ट्रांचेज है में। ना? यस यस, ठीक ठीक है सर। मेजर पार्ट जाता है जब फंड आ जाता है। हम्म। हाँ जब फंड मीन्स रिलीज, आईपीओ हाँ, पे पैसा आता है, उसी में से अंडर राइटिंग फीस वगैरह डिडक्ट होती है। तो इसका मतलब 15 करोड़ के अगर मैग्नीट्यूड लेके चलें तो लास्ट में जब फंड आएगा तो कितना परसेंट, 10 करोड़ कह सकते हैं क्या कि 50-50%? हाँ, नहीं नहीं, 10 करोड़ हाँ तभी जाएगा जब फंड्स में से अच्छा, हाँ मीन्स लास्ट में 10 करोड़ जाएगा, पहले लास्ट। 5 करोड़ है ना? वो भी, वो 50-50। 5 करोड़ बहुत ज्यादा बोल दिया है। वो कुछ फीस होती है, जैसे सेबी की फीस है, पीओ ऑडिटर की फीस है, कंसल्टेंट की फीस है, वो भी इंस्टॉलमेंट में जाता रहता है। एनएससी का है चार्जेस, आपकी कोई कंप्लायंस है उसको, उसके चार्जेस हो गए, सीएस की फीस हो गई, ऐसे जाता है। 5% भी बहुत ज्यादा है, 5 करोड़ भी बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है। मेजरली पार्ट वही जाता है, मतलब आप मान लो चलो कि 40-50 लाख रुपए बस पहले जाता है। पहले जाता है, लास्ट में मेजर चंक जाता है जब फंड आता मेजर है। चल वही जाता है,
ठीक है, ठीक। Yes. So should we conclude the session? Yes, sir. We can conclude. Thank you so Thank you much. so much. Hope Thank to you. Thank you. hope to call you soon for further. Yeah. Anytime, ma'am. Anytime. ठीक है. Thank you So, so thank much, Thank you, and sir. thank you Thank all you. thank participants. Thank you. you, Thank you sir. so much. Thank you.